Good morning, student. This is Srikant and our class 10th history chapter 2nd nationalism in India going on. Students, our history second chapter nationalism in India basically the story of freedom struggle of India, and the important topic to be covered in this chapter is and how the nationalism spread among the Indians people, यानी कि जो नेशनलिज्म है राष्ट्रवाद लोगों के अंदर जो बेटा कैसे एक्सप्रेड होता है. ओके, एंड हाउ द पीपुल्स सर्च some collective belongings, and what is the Khilafat movement and the non-cooperation movement, the civil disobedience movement, okay, and Dandi March and sense of the collective belongs, and this topic cover in these chapters. Okay students, and our main topic, okay, start from page number 54 your NCERT book. You can see, आप देख सकते हो बेटा हमारी जो NCERT की जो बुक है पेज नंबर 54 से हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है. ओके, एंड द टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन. ओके, so here we will start our topic from effect of the first world war. Okay, जो students, as you know, the first world war start in 1914. Okay, and there is a two power, allies power and axis power. Okay, and during the 1914, okay, our India was the colonials of the British government. Okay, and the British government, and there is two power, the British government, okay, and lead to the allied power. Okay, and there are many other countries just like USA, Russia and France. Okay, and the British government lead to the allied power. And students, how the first world war ultimately how the growth of nationalism in India, how the first world war, यानी कि आश्चर्यजनक रूप से ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है हमारे अंदर, हमारे इंडियन पीपुल के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे जो है एक्सप्रेस करता है. ये बहुत ही बेटा वंडरिंग टॉपिक है. आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इसके पहले जो है नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, हाउ द नेशनलिज्म, ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इवन द एंटी nationalist feeling among the Indians peoples. Okay, and the question regarding of this topic is the how the first world war scenario in the India was responsible in the instigating the anti-British feeling among the Indians. Another type question, how had the first world war helped to the growth of nationalism in India. And other type questions, how the first world war create new economic and political situation among the Indian people. और भी क्वेश्चन बेटा, how the first world impact of first world war on the India. तो क्वेश्चन कई तरीके से आएंगे और आंसर इसका बेटा एक होगा. ओके, तो जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको लिखना है, वही आंसर है. ओके, एनसीईआरटी का यूज केवल करेंगे हम लोग बेटा जो है पेज नंबर और जो है पैराग्राफ देखने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक, पैराग्राफ सेकेंड 54 का बेटा जो लेफ्ट साइड से पैराग्राफ फर्स्ट है उस सेकेंड पैराग्राफ उसको देखिए. And question, I repeat it again, question, how had the first world war helped to the growth of nationalism in India. दूसरा, how the first world war create a new economic and political situation among the Indian peoples. Answer is, यानी कि बेटा आश्चर्यजनक रूप से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो लोगों के अंदर एंटी जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे जो बेटा इमर्ज किया. आंसर इज देयर आर टोटल 6 पॉइंट्स. ओके बेटा, यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट है. वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इट क्वेश्चन आस्क्ड बाय सीबीएसई मोर देन 10 टाइम्स. आप इसको बेटा ये देख सकते हो अनसॉल्व पेपर में 10 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ सकता है और ये इस चैप्टर का बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है एंड फॉर द 2021 एग्जामिनेशन. ओके, एंड वी विल नाउ वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके,
and the war had created new political and economic situation all around the world. Okay beta, the first world war, okay, create new political and economic situation all around the world. Okay बेटा, एक नया जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट करता है, और कैसे करता है बेटा, ओके आइए देखते हैं. एंड द ब्रिटिश वाज अंडर द ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर विच हैड द फाइनेंस फ्रॉम द वॉर लोन्स. ओके, एंड ब्रिटिश fought in the first world war, okay, and they faces here two problems. First is the financial problem and second is the casualty. Okay, यानी कि हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं तो we expend lots of money, there are needs a lot of money in the world war. ओके, एंड सेकेंड जब हम लोग वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं तो फिर हमारे जो बहुत सारे बेटा जो आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं, उसकी कैजुअलिटी वो मारे जा रहे हैं. उसको हम लोग कहाँ से फुलफिल करेंगे? जो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है बेटा, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उन्होंने सारा खर्च को मतलब कहाँ से उठाने के लिए वो मतलब वो जो है देख रहे हैं, वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि सारा खर्च जो हम लोग इंडिया से जो है लेते हैं. ओके, जितना भी जो है उसका खर्च हो रहा है वर्ल्ड वॉर में, उसका सारा खर्च हम लोग इंडिया से लेते हैं. तो उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं वन बाय वन. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज्ड द कस्टम ड्यूटीज. ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज द सेकेंड पॉइंट, एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक सारा बेटा दिया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिया, आप उसको निशान लगा सकते हो, यहाँ पर भी है. ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज द कस्टम ड्यूटीज एंड द इम्पोज इनकम टैक्सेस ऑन द इंडियन पीपल्स. खाने के लिए नहीं है, सारी महंगाई है, फूड की शॉर्टेज है, लेकिन क्या है, इनकम टैक्स, न्यू द इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. Okay, and the third point, village were called upon supply the soldiers. Okay, and the rural people forced to join a British army. कैजुअलिटी हो रही है वहां पर, युद्ध में ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, सोल्जर्स भी चाहिए, और सोल्जर कहाँ के चाहिए, इंडिया के चाहिए. एंड इसके लिए उन्होंने क्या किया, एंड दे फोर्स्ड टू इंडियंस पीपल टू ज्वाइन अ ब्रिटिश आर्मी. यहाँ पर स्टोरी हम लोग बेटा समझेंगे. ओके, जैसे ब्रिटिश की गाड़ी आ रही है, मतलब ब्रिटिश पुलिस की गाड़ी आ रही है, ओके, गांव में गई है, एंड वन बिलो द 15 इयर्स चाइल्ड जो कि घर से निकला है, ओके, कुछ सामान मामा ने भेजा कि जाओ बेटा कुछ चाय वगैरह लाओ, बिस्किट लाओ, ओके, खाते हैं, चाय बनाते हैं, आप लोग खाइए. और उतने में पुलिस की गाड़ी आती है, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, ये चाय मामा ने चाय लाने के लिए भेजा है, बिस्किट लाने के लिए भेजा है, नहीं चलो ये ऐसे तिलक लगाते हैं, एंड नाउ एंड यू आर द ब्रिटिश सोल्जर्स. आप क्या हो गए, ब्रिटिश सोल्जर हो गए. उसको गाड़ी में डाला और लेकर के चल दिए. ओके, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, दिस एक्शन, एंड दिस लेड टू द वाइड स्प्रेड एंगर, ओके, इन रूरल एरियाज. मतलब देखो, अगर जो छोटे बच्चे हैं उनको पकड़ करके लेकर चले जाओ, खेलने खाने की उम्र है, आप लेकर चले जाओगे तो गुस्सा होंगे, तो ये किसको लेड किया, इट लेड टू द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द रूरल पीपल्स. सेकंड पॉइंट कंप्लीट. ओके, थर्ड पॉइंट, एंड स्टूडेंट द फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ड्यूरिंग द 1918 to 19 and 20 to 21, two times, okay, two times crops were failure all over India. पूरे जो भारत में बेटा क्रॉप जो है फेल्योर हो जाते हैं ड्यू टू द फैमिन्स, ओके, एंड ड्रॉट, सूखे की वजह से, एंड बैड क्लाइमेट की वजह से सारा जो है क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं. उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, रिजल्ट फूड शॉर्टेज. जब क्रॉप्स ग्रो नहीं होगा तो फूड शॉर्टेज होगा. ओके, एंड एट द सेम टाइम्स इन्फ्लुएंजा द एपिडेमिक ब्रोक आउट, एंड अप्रॉक्स द and 12 to 30 million people were died, okay, and due to the epidemic and influenza. यानी कि भूख से, एपिटाइट से लगभग 12 to 13 पीपल्स क्या होते हैं बेटा, मारे जाते हैं. ओके, आई होप इट्स क्लियर. यानी कि एक का बेटा आंसर देंगे तो दूसरा उसका खुद ही आंसर. जब फूड जो है क्रॉप फेलियर हो गया तो फूड की शॉर्टेज होगी, एंड प्राइस ऑफ फूड्स ओके हाइट हो जाएगी, बढ़ जाएगी. एंड द थर्ड, मतलब यहाँ पर बेटा लास्ट में दिखाओगे कि अबाउट द 12 to 13 million पीपल्स वेयर डाइड इन दिस एपिडेमिक. इस एपिडेमिक में मारे जाते हैं. एंड लास्ट में, और यहाँ पर यू कैन ऐड सम वन मोर पॉइंट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रॉलेट एक्ट,
and the Jallianwala Bagh massacre also helped to the growth of nationalism in India. Okay, लास्ट में बेटा सारा कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग. द वॉर हैड क्रिएटेड द न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन. ब्रिटिश अंडर द ह्यूज एक्सपेंडिचर व्हिच हैड द फाइनेंशियल फ्रॉम द वॉर लोन्स, कस्टम ड्यूटी रेज्ड एंड इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड. विलेज वेयर फोर्स्ड टू द जॉइन ब्रिटिश आर्मी. Cross failure 2 times. Okay, and the same times influenza epidemic broke out and about the 12 to 13 million people were died. Okay, and Rowlatt Act passed and the Jallianwala Bagh massacre. Okay, all these factors, okay, are responsible to the growth of nationalism in India. Last में बेटा इतना पॉइंट लिखने के बाद एक यहाँ पर अपने तरफ से यहाँ पर ऐड करोगे. ठीक है, all these factors are combinedly responsible for the growth of nationalism in India. तो हम लोग स्पेशली किसको पढ़ रहे बेटा? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, ओके स्टूडेंट, थैंक यू. आई होप इट्स क्लियर.